اگر میں اپنی ایڈیشن نہ کرتی احسن خان تو کیا ہوتا؟ تو کتنا خوبصورت لگتا. یہ میری جو ایڈیشن ہوتی ہے نا اس میں سے آپ پڑ جاتا ہے. جگن ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ یور سیلف. میں پہلے اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کرتی تھی, اب میں انڈر انڈر پہ گئی ہوئی ہوں. کہ انڈر کر لوں, اس سے انسان خوش رہتا ہے. انشاءاللہ 60 سال کی عمر پہ میں بیلنس میں آ جاؤں گی. اچھا ویسے ایک بات ہوتا ہے, یہ کہتے ہیں کہ اگر ایکسپیکٹیشن خود سے دوسروں سے کم رکھو تو آپ زیادہ خوش رہتے ہیں زندگی میں. when you expect less then smoothly چیزیں چلتی رہتی ہیں. جب آپ زیادہ ایکسپیکٹیشن کر لیتے ہیں اور وہ ایکسپیکٹیشن ٹوٹ جائے تو پھر دکھ ہوتا ہے. اور جیسے ہم لاہور میں اکثر کہتے ہیں اوے اوقات میں رہو, تو میں اپنے آپ کو اکثر جب اوور ہو رہی ہوتی ہوں نا کہتی ہوں اوے جگن اوقات میں رہو, بیکاز اوقات ہم بھول جاتے ہیں. اٹس اے ورڈ دیٹ پیپل, لوگوں کو بڑا برا لگتا ہے, لیکن ایکچولی مٹی سے بنے, مٹی میں جانا ہے, ککھ نہیں ساتھ لے کے جانا دعائیں اور اپنے اعمال کے علاوہ. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جتنا زیادہ اس مٹی کے قریب رہیں گے اور بیسک رہیں گے, میرے خیال سے زندگی اتنی آسان ہوگی. اور آج جس پرسنالٹی کا کے بارے میں آپ ہمیں بتانے جا رہے ہیں وہ کچھ ایسے ہی ہیں, اتنے پیارے, اتنے امیزنگ اور اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ کہ کوئی اگر ان کو ملے اور ایک لمحہ نہ پہچانے, وچ از امپاسبل, کہ نہ پہچانے تو کہے یار یہ کون ہے اتنا عاجز بندہ, who is this person. اور تب پھر جب پتا چلے کہ اتنے بڑے اسٹار, کنگ اینڈ کنگ میکر, بائی دی وے کچھ کہہ دیا تو اب بلا بھی لیں آپ ان کو. نہیں آپ ہی بلائیں. میں کیا کام بھی تھوڑے اچھے اچھے کرتے ہیں نا. کام تو پوری, تو وہ نام تو ایسا ہے ان کا کام, ہم نہیں بھی یہاں پہ بیان کریں گے تو پیپل نو ہم سو ویل. پاکستان کے کونے کونے میں لوگ نام جانتے ہیں. اچھا لیکن میں ان کی جب جرنی, ان کی ٹریجیکٹری جب نوٹس کرتا ہوں, کیونکہ ہر ایکٹر کی اپنی اپنی جرنی ہوتی ہے, تو میں دیکھتا ہوں کہ نیو آنے والی جنریشن بہت سے ایکٹرس کو, ان کے دور کے ایکٹرس کو بھول چکی ہے یا جانتی نہیں, کیونکہ ان کا کام ایک سرٹن کائنڈ آف پیپل دے واچ اٹ. بٹ ایک ایسا شخص, ایک ایسا آرٹسٹ جس کو بوڑھا, بڑے, جوان اور بچے بھی پہچانتے ہیں. اور اگر اصل حقیقت میں جب پی ٹی وی کا ایک ایسا دور تھا کہ پی ٹی وی کے پروگرامنگ بچوں کے لیے خاص ہوا کرتے تھے, اور کہیں اور کسی اور چینل پہ ایسا ہوتا کبھی نہیں ہے. اب بھی پی ٹی وی پہ بچوں کے پروگرامز دکھاتے ہیں, لیکن یہ ایک ایسا پلے بناتے ہیں, خود بناتے بھی ہیں, پروڈیوس بھی کرتے ہیں, اس کا حصہ بھی ہیں, جو کہ ہر ایک میں مقبول ہے. مطلب میں اگر اپنے گھر کی مثال لیتا ہوں, لائک میں خاص و عام میں اپنے گھر کی مثال لوں تو اف مائی مدر ہو از ناؤ ماشاء اللہ ٹچنگ 80 ناؤ, ماشاء اللہ, میں اکثر جب وہ یہاں پاکستان میں ہوتی ہے تو ان کے جب روم میں یا لاؤنج میں انٹر ہوں تو ان کا پلے چل رہا ہوتا ہے. پھر جو میری سب سے چھوٹی بیٹی ہے, شی از آلموسٹ 3 ناؤ, اور وہ ان کی یا ان کے ساتھ جو کاسٹ ہے ان کی آوازیں نقلیں, وہ ان کو ہم کہتے ہیں ذرا وہ چل کے دکھاؤ کیسے چلتی ہے. مطلب اتنا یہ بڑا ریئر ہوتا ہے. اینڈ آئی ٹیل یو واٹ جگن, مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف اس انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے جو واقعتاً صرف آرٹسٹ اچھا نہ ہو, انسان بھی اچھا ہو, اور کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ضرور راضی ہوتا ہے, یا کوئی اللہ کی رحمت ہوتی ہے یا برکت ہوتی ہے جو ان کو نواز دیتا ہے. تو آخر یہ بریلینٹ انسان جن کو ہم نے اتنا شدید خراج تحسین پیش کر دیا, اتنا پیش کر دیا کہ مطلب نام لے کے ہی ہم پروگرام. پلیز ویلکم نبیل ظفر. کیا بات ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اتنا زیادہ تعارف ہوا, مجھے لگا شاید کسی اور کا نہ ہو, میں واپس جا رہا تھا. السلام علیکم نبیل بھائی, رمضان مبارک. آپ کو بھی مبارک. اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں اور جگن جب باتیں شروع کرتے ہیں تو ہمارے 1 منٹ سے 2 منٹ, 2 سے 4, 4 سے 8, پھر اوپر آواز آنے لگتی ہے کہ اتنا لمبا انٹرو ہو چکا ہے, 45 منٹ پہ جو کام جس کے لیے ہم نے کرنا تھا وہ ختم ہو گیا. کام بھائی میوزک کیوں بند ہو گیا؟ نبیل بھائی مجھے نہیں سمجھ آیا, ان کے آتے زیادہ میوزک آنا چاہیے. اچھا بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ, آپ بتائیں. نبیل بھائی نیکسٹ ٹائم آپ نے گھر پہ بیٹھ کے انٹروڈکشن سننا ہے. بالکل صحیح. اور پھر اتنی دیر میں آپ گاڑی میں آئیں گے. بٹ یہ دیکھو نا نبیل بھائی, بات بتاؤں, آپ اور کچھ اور ایسی پرسنالٹیز ہیں جیسے بشرا آپا کی, دیر آر فیو پیپل جن کے جیت جاتا ہے کہ بہت لمبا انٹروڈکشن, کیونکہ ہم نے اتنی باتیں کہنی ہوتی ہیں جو نارمل لائف میں کہنے کا موقع نہیں ملتا, تو ہم اپنے ساری جو خواہشات. اچھا, اور ناٹ اونلی دیٹ, بیکاز when we know you personally, آئے بیٹھ جاتے ہیں یار, تشریف رکھے آئے ہیں, یہاں بیٹھے. when we know somebody personally تو ادھر آ جائیے, تو پھر انسان ظاہر ہے اس کی زیادہ خصوصیات بیان کرتا ہے. اچھا, کیونکہ رمضان کا میں کی ایک عادت بتانا چاہتا ہوں. ہم کام کے حوالے سے دوسری باتوں سے تو سنتے رہتے ہیں. میں ایک دفعہ ان کے ساتھ میں سیریل کر رہا تھا, آصف علی کا سیریل تھا, I don't remember the name of the serial, مجھے نام بھول گیا. تو
थिंक मुझे आपको कहीं ड्रॉप करना था घर पे आपके, मैं साथ चला गया, यानी मेरी गाड़ी में नबील भाई हमारे साथ, और फिर नबील भाई जब घर में रुके ना इनके, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं, एक मिनट रुकना, मुझे कुछ एक चीज़ तुम्हें पकड़ानी है, वो प्लीज़ ले जाना। आरिफ भी साथ था, बल्कि उन्होंने आते ही आरिफ का पूछा कि आरिफ कहाँ है। अच्छा, तो वो इन्होंने अभी तक है आपको नबील याद है भाई, क्या? वो अभी तक मैं है। वही इससे पूछा, मैंने कहा तेरी निशानियां नजर नहीं आ रही। नहीं, वो निशानियां हम इबरत अच्छा, तो आपको याद है कि आपने क्या वो एक गिफ्ट दिया था मुझे? डू यू रिमेंबर दैट? ये 2008 की बात है, जी मैं गलत नहीं। यू डोंट हाँ। रिमेंबर दैट? आई रिमेंबर दैट स्पेसिफिकली। हाँ। मैं बताऊं आपको, तो सीरियल का मुझे याद है। हाँ सीरियल याद है। इन्होंने कुरान की सीडी मुझे दी और तर्जुमे के साथ सीडी थी, और ये उस जमाने में, उस वक्त में ही वाज गोइंग थ्रू सम चेंजेस इन लाइफ, सम काइंड ऑफ चेंजेस, एंड जब इंसान के अंदर वो सेल्फ रिफ्लेक्शन और वो सेल्फ रियलाइजेशन का एक जमाना आता है, जो अल्लाह ताला ही आपको उससे गुजारता है कि ताकि आपके अंदर जिंदगी में चेंज आता है। तो इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं, अपनी गाड़ी में रख ले और इसको सुना भी कर, इसको पढ़ा भी कर, लगा के जब तू ड्राइव करो तो Actually मुझे वो- तो याद करेगा। और आपने एक सर मुझे नहीं बांटी, इन्होंने बहुत सी कॉपीज करा के रखी थी कि जिसको कुरान की सीडी बांटते थे। अच्छा, उसके बाद नबील भाई, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, हाँ। मैंने तकरीबन साल 1.5 साल तो वो मेरी गाड़ी में रहा और वही चलता रहा, वही मैं सुनता रहा, कुरान की तिलावत भी सुनता रहा, तर्जुमा भी सुनता रहा, बहुत उससे कुरान सीखा। और मैं जब सुनता था मैं सोचता था, या अल्लाह, ये इस आदमी ने मुझे ये सीडी बांटी है और कितने लोगों को सुनाई है, और 1.5 साल से मैं सुन रहा हूँ, किस कदर इसको सवाब इस शख्स को मिल रहा होगा, कितना नेक काम है ये आपका यार, जबरदस्त। वो है बेसिकली हुआ ये कि मुझे बेसिकली ये किताब हमारे लिए अल्लाह ने ऐसे दी है, जैसे हर आदमी हर चीज़ के साथ उसका मैनुअल आता है, इसी तरह हमारे साथ ये आई हुई किताब। तो मुझे शौक हुआ कि ट्रांसलेशन के साथ इसको सब्जेक्ट की तरह सुनूं। सही। अच्छा, इजाद का फ़ायदा ये होता है कि आप पढ़ने में टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है, सुनने में आप आपको जल्दी आसानी है और बहुत ज़्यादा होती है। समझ भी आ बिल्कुल। जाता है। तो मैं एक FM 100 पे गेस्ट गया, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आपके पास एक सुबह चलती है कारी वही जफर साहब की आवाज में, जी हाँ, तो वो आपको चाहिए। मुझे गिफ्ट देना होगा। तो उन्होंने कहा कोई मसला ही नहीं, MP3 उन्होंने मुझे दी। तो शर्त ये थी कि शर्त ये थी, आऊंगा, हाँ, लेकिन ये उस लेके वक्त जाऊंगा। वो रेडियो वाले कह रहे थे हमारे पास पैसे ही नहीं है, तो मैंने कहा अच्छा चलो एक चीज ये मुझे दे दो। करोड़ गुना ज्यादा आपने दे दिया। अच्छा, वो जब मैंने सुनना शुरू किया, मुझे बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि वो समझ आने लगती है कि अल्लाह आपसे क्या बात कर रहा है, प्रॉफिट से क्या बात कर रहा है, उस वक्त के लोगों से अल्लाह क्या बात कर रहा है। तो मुझे दिल किया कि मैं ना इसको जो अपने करीबी लोग हैं ना उनको, तो मैंने वो बहुत सारी उसकी कॉपीज करवाई, करवा के, तो वो इसी दौर में मेरे हाल तुमसे मुलाकात हुई थी, हाँ, तो मैंने तुम्हें भी दी थी कि यार ये इसको ट्रांसलेशन के साथ सुना करो, क्योंकि तो ये आपको अंदाजा है कि कितना बड़ा आपने काम किया कि मुझे अभी तक नहीं यार, वो अच्छा मुझे- खुद से नहीं पता होता। एक्चुअली मैं बताऊं तुम्हें, ये देखो, जब भी मैं कल भी किसी को कह रहा था कि इबादत जो है ना, जब भी आप अपने क्रिएटर की तरफ जाते हैं और आपको अपना रमजान क्या है, रमजान जो है वो जो मैं समझाऊं वो ये है कि ये आपको अपने क्रिएटर के साथ रिन्यू करने का टाइम मिलता है। क्या आप अपना रिलेशन जो है वो रिन्यू करें, उसको नया करें। लेकिन नबील भाई, एक बात यहाँ पे जरूर ऐड करना चाहूंगी, बल्कि एक बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। कुछ 2-3 दिन पहले ही हम लोग कहीं पे बैठ के बात कर रहे थे, तो ये डिस्कशन हो रही थी कि कुरान पाक की का तर्जुमा भी जरूर है, तो फिर आपको एक्चुअली समझ आएगा, वरना तो आप उस पे जा रहे हैं तो आपको बताया जा रहा है। एक शख्स जो है वो इसी तरह जो है वो कहीं पे बैठे हुए थे, तो बल्कि एक सेट किया, का ये वाकया जो मुझे रिपीट किया गया, ये सब बैठ के ना अपने कामों में मसरूफ थे, तो वहाँ पे एक बच्ची जो बैठी हुई थी, जो मेकअप करती है, वो कुरान पाक पढ़ रही थी अरबी में, और साइड पे एक मर्द जो हैं जिन्होंने ये वाकया सुनाया, एक्टर, उन्होंने कहा कि मैं पढ़ रहा था कुरान, तो मुझे किसी ने आके, वो वन ऑफ द आर्टिस्ट ने पूछा, तो मैंने कहा मैं हाँ तर्जुमा पढ़ रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कौन सी ज़बान में, तो उन्होंने कहा अंग्रेज़ी में। वो जब चली गई खातून वहाँ से, जो बच्ची मेकअप कर रही थी, अब सोचें कि कितनी मासूमियत और इनोसेंस है और लैक ऑफ नॉलेज भी, कि उस बच्ची ने उनको घूम के कहा कि मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ भाई, अगर आप बुरा ना मनाए, वो ज़रा सीनियर आर्टिस्ट है हमारे, तो कहते नहीं बेटे बताओ, तो कहते आप कुरान अंग्रेज़ी में पढ़ रहे हैं? कहती जी। तो कहती है तो क्या मैं उर्दू में पढ़ सकती हूँ, क्योंकि मुझे ना अरबी में कभी कभी दिक्कत होती है, क्योंकि अरबी उस तरह से सीखी नहीं।
वो हैरान हो गए। और फिर जब आए हम लोग सब जहाँ बैठे हुए थे शाम को डिनर के लिए, तो उन्होंने कहा कि जुगन कैन यू इमेजिन, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये नहीं रियलाइज करते कि सिर्फ कुरान मजीद अरबी में भी नहीं बल्कि उसकी ट्रांसलेशन भी सबसे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है। यही और है कि आपने आप कितना बड़ा पढ़ें, काम किया। आप पढ़ें और सब देखिए कितना अलमिया होता है कि आप अपने बच्चों को, अगर आपके बच्चों को फ्रेंच नहीं आती, आप कभी वो किताब देंगे? कभी भी नहीं। कोई फ्रेंच का नॉवल देंगे? नहीं। तो यार आप अगर आप चाहेंगे कि आपका बच्चा पढ़े, तो समझे, सबसे पहले पढ़े। उसको वो उर्दू, ज़बान अंग्रेजी, समझाएंगे जी, या उसका ट्रांसलेशन बिल्कुल। देंगे, तो कैसा अलमिया है। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है कि तिलावत तो अरबी में ही होती है और उसका बिल्कुल, सवाब अजर बिल्कुल, है एक अपनी 100%। जगह, लेकिन समझने के लिए किसी भी जबान में आप अपनी जबान में हाँ, जरूर समझे। बहुत जरूरी है क्योंकि ये किताब आई समझने नहीं, के उस अच्छा, फिर बच्ची अब को ये जो- पता ही नहीं था कि वो ये कर अच्छा, अब मैं सकती, ये जुगन- भी कर सकती है। नहीं, ये बड़ी अच्छी, या खैर आपका काम था जो मैंने ऑनेस्टली बोला कि आपने एक ऐसा काम किया। हमारा आज जो टॉपिक है ना वो अखलाक और इन चीज़ों के बारे में, तो ये एक सदका जारिया। आप 2008 की बात है, लेकिन मुझे याद है कभी कभी इंसान अपना एक बीज बोता है और वो किस तरह से उसको रिटर्न मिलता है, या सदका जारिया किसको कहते हैं, ये हमें जिंदगी में अल्लाह दिखाता है। अच्छा जनाब, काम के हवाले से बात करते हैं तो मेरा वेरी फर्स्ट और सेकंड सीरियल, भाई जुगन ये भी सुन लो, नबील भाई के फेस पे रखना कैमरा, भाई मेरे फेस पे ना रखो। ये वो शख्स है कि जब मैं नया नया इस फील्ड में आया, काम शाम जिसको कहते हैं काम कख नहीं आता सी तकरीबन। और मेरे साथ एक्टर्स कौन कौन है, ये अल्लाह माफ करे, नबील और आरफा सिद्दीकी या अल्लाह, और फैसल कुरैशी, जिन तीनों स्टार्स। एंड आई एब्सोल्युटली डिड नॉट इवन नो हाउ टू वॉक। मुझे आरफा ये सिखाती थी। मेरी आरफा से कुछ दिन पहले बात हुई तो आरफा कहती तुम्हें मैं याद हूँ। मैंने कहा आरफा हाउ कैन आई फॉरगेट यू। एक तो बचपन में आरफा सिद्दीकी हमें इतनी पसंद थी कि हम उनको देखते रह जाते थे, और इस उम्र में भी हमें पसंद इस है उम्र वो। में भी पसंद है, लेकिन वो अच्छी भी उतनी थी। शी टॉट मी सो मच। मैं देखो अच्छा जो इंसान सेट पे होता है, उन्होंने मुझे ये बताया कि ऐसे नहीं डायलॉग चल के आके बोल रहे ना तो अपने बालों में हाथ यूं फेरो, ये भी बोला उन्होंने। तो इतना मतलब माइन्यूट। तो ही वाज द वन इन द बिगिनिंग। मैंने इन लोगों के साथ काम किया। अशफाक साहब का अब वो अशफाक अहमद साहब की जिंदगी का वो आखिरी सीरियल शाला कोट। और तुम्हारी गुड लक ये है कि मेरा मेरा सेकंड या फर्स्ट सीरियल था। सेकंड सीरियल था। नबील भाई एक सवाल है जरूर मेरे जहन में रिलेटेड टू, देखिए आपका एक बहुत ही ब्रिलियंट प्रोजेक्ट है जो जब हमने पहले भी बात की एक दफा इसके बारे में, तो आपने कहा कि मुझे बस कुछ हो सा गया कि एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि होगा। सस्टेन करना कितना मुश्किल है ऐसी चीज को। ये मैं अक्सर कहती हूँ कि देखिए ब्रांड्स की जब हम एंडोर्समेंट करते हैं तो हमेशा कहते हैं नंबर 1 बन जाता है बंदा, तुक्का लग जाता है। नंबर 1 पे रहना सच्ची बात है। उसके बाद लोगों ने सिटकॉम ही बनाने छोड़ दिए क्योंकि उन्होंने कहा कि अब इसके साथ को उधर फ्रेंड्स बना, कुछ देखता नहीं उधर हॉलीवुड में फ्रेंड्स बना तो बड़ी देर तक आपको कोई ऐसा सच, लोगों ने ट्राई मारी लेकिन वो फेल हो गई, फिर लोगों ने हिम्मत ही हार दी। तो आपने एक ऐसी चीज बना दी कि अब लोग डर के मारे सिटकॉम ही नहीं बना रहे। सो ये सस्टेन कैसे करते हैं, मुझे प्लीज फॉर्मूला बता दे प्लीज। यार ये मैं हमेशा समझता हूँ, इसको मेरी कसर नफ्सी मत समझिएगा, मैं इसको ब्लेसिंग ही समझता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। जब हम बैठते हैं तो मैं रब्बे जितनी इल्मा करके बैठता हूँ कि यार कोई कॉन्सेप्ट आ जाए, कुछ चीज़ें हो जाएं। हमेशा हमें नहीं पता होता कि हमने क्या करना है, क्योंकि हम ऑलमोस्ट 800 एपिसोड्स कर चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। 800। हाँ जी, और 800 16 साल है। और अब प्रॉब्लम ये होता है कि अगर चोर भी आएगा तो किस नए अंदाज से आएगा, क्योंकि चैनल इतना रिपीट करता है उसको कि ये नहीं हो सकता कि आप अपने आप को रिपीट कर लें। बिल्कुल, वो मिस भी नहीं होता, वो रिपीट तो कर ही सकते हैं। पता चले मैंने रिपीट की चीज, पता चले उसी दिन सुबह रिपीट हो गई है। तो वो तो 16 साल में ये आपने ये एक जर्नी चली। अब मुझे ये बताइए कि 16 साल में बार बार मतलब एक चीज को इंटरेस्टिंग रखना, मजे का रखना और उसको कंटिन्यू करना, कितनी देर में अब आपका एपिसोड शूट होता है? पहले तो आई एम श्योर के 2-2 3-3 दिन में आप लोग एक करते होंगे। अब क्या 16 साल की वजह से क्विक हो गया काम? अब एक बहुत अच्छा हो गया, हम एक दिन में एक एपिसोड शूट करते, एक दिन में एक शूट कर लेते हैं। हाँ, उसकी वजह ये कि एक तो मेरी टीम वही है, मैंने बहुत सारी जगह बताया कि स्पॉट बॉय भी वही है, कैमरामैन भी वही है, तो सारे जो 16 साल से चलते हुए आ रहे हैं सब चलते हुए आ रहे हैं। यार ये भी कमाल है। TNG के बच्चे बदले हैं क्योंकि कुछ बच्चे जो थे बड़े हो गए, कैमरामैन हो गए, कुछ हो गया, सीनियर भी हो गए, स्पॉट बॉय से लेके कैमरामैन, बाकी टीम सारी। वाह यार, 16 साल से कितने खानदानों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, ये भी तो देखे ना, तो वो चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि एक तो ये ब्लेसिंग है और दूसरा 16 साल यानी कि 2010 We started in 2009 और in आपने October. कुरान की सीडी बांटनी शुरू की 2000। मैं यही तो बोल रहा हूँ, आपको कुछ समझ आई मेरी? ट्यूबलाइट कभी तो जलेगी ना, तो जल गई। अल्लाह एक नहीं, अल्लाह हजारों रंग
रंग में आपको नवाजता है ऐसे ही। और वो आपको कभी कभी रंग दिखाई नहीं दे। अगर आप में ग्रेटिट्यूड वाली नेचर आपकी हो, शुक्र अदा आप रब का करते हो, पहचानते हो, तो आपको लगता है कि आपकी ज़ात को आप देखते हो तो आपको लगता है अल्लाह ने कितनी करम नवाजी की हुई है। ऐसे ही है। मैं तो बहुत ब्लेस्ड आदमी हूँ। ये बहुत शुरू में आया था, कोई फैमिली में नहीं था, तो बिजनेस शुरू किया तो बहुत जल्द अल्लाह ने जो है वो स्टार्ट दे दिया धुआं से। तो वो एक ऐसा टाइम हुआ कि बस चल सो चल। देन फिर एक टाइम ऐसा आया, मुझे लगा कि यार मुझे काम नहीं करना, मैं डायरेक्शन में चला गया। देन क्यों हंस कुछ ऐसे नहीं, कुछ है कुछ अच्छे लग रहे आप बोल रहे, आप अच्छे लग रहे बोलते हो, बस हम अच्छा, आगे वो लोग ये वाले परेशान तो नहीं हो रहे, किसी और को भी बोलने दे रहे हो तुम? ऊपर वाले जो हरकतें कर रहे हैं हमें उनको शायद ऊपर ही भेजना पड़ेगा। लेकिन उसका बाद में पता लगेगा। लोगों से क्या छुपाते हैं, लोगों के साथ मैं जुनको इशारा किया कि 2 मिनट कुछ नहीं बोलना। अच्छा मैंने शुक्र नहीं, मैंने ये इशारा किया। अच्छा एक हमें किचन की अच्छा, मुझे ना वो याद आ गया, वो एक हमारे दोस्त ही है, होस्ट हैं, एक नाम नहीं, तो वो इसी तरह उनके शो पे गए थे, तो सुन लो उनके शो पे गए थे, साथ वाले दोस्त बड़ा परेशान थे, क्या है इसमें? मैंने कहा कोई टेंशन ना कर लो। मैं कहता क्यों, ईद का शो था। मैं कहा ये गाएंगे भी खुद ही, डांस भी खुद ही करेंगे, कॉमेडी भी खुद ही। और मैं समझ गया किसकी बात कर रहे हैं। और वही हुआ। ये आदमी मेरी नौकरी, चेक लो ये दोनों जुगन नहीं बस इसलिए मैंने कहा था जब मैं तो कुर्सी पे सो ही गई हूँ। मैंने इसलिए बोला जब मैं बोल रहा हूँ तो कैमरा प्लीज ऊपर रखना। ये मैं इसलिए अच्छा कैमरा ऐसे मुंह से किचन के अब जाने बढ़ेंगे, लेकिन मैं रमजान के हवाले से ये जरूर चाहता हूँ कि आप क्या नोटिस करते हैं, साल माशाल्लाह आप पाकिस्तान में हैं, यू आर सच अ वंडरफुल अकम्प्लिश्ड आर्टिस्ट, पीपल लव यू एंड यू डूइंग सो मच, बड़ा एक्सपोजर आपका, बड़ी एक जहानत है माशाल्लाह। क्या लोगों के लिए आपको लगता है कि रमजान में ये चीज कहीं कमी है या ये चीज और हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा? क्या कहते हैं? रमजान में पाकिस्तान में जो है पकौड़ों की कमी नहीं सबसे होती। ज्यादा नहीं, इट्स अ सीरियस क्वेश्चन। हाँ नहीं, सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है वो लगता है हर आदमी कारोबार जो है वो रमजान में करता है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देख लें, फल जो है वो हमारी दस्तरस से बाहर हो जाता है। अच्छा, जब आप कंपैरिजन करते हैं बाहर अरब का, सऊदीया, दुबई, कहीं भी, तो आपको पता चलता है कि वहाँ लोग जो है वो 3-3 माह का राशन स्टॉक कर लेते हैं क्योंकि सस्ता होता है। और हमारा पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अलमिया है, वो शायद हमारी तरबियत का मसला है कि हमने अपने लोगों की तरबियत ऐसी नहीं की कि उनको ये लगे कि यार ये वो महीना है जिसमें अल्लाह से कारोबार करना है, लोगों से कारोबार नहीं करना। और आप सोचे कि 100 रुपए वाली चीज 500 रुपए की होती है, तो जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब होती है उनको 1 वक्त की नहीं होती है। फायदा क्या होगा? बड़ी अच्छी बात की तरफ इशारा किया है नबील जफर भाई ने, और ये बड़ा जरूरी है कि लोग, और ये हम पिछले 10-15 सालों से ही कहते जा रहे हैं, ये बात इधर से आए, और ये कभी ऐसा होता नहीं कि हम ये देख लें कि यार कोई चेंज आ गया, भाई इस साल इतना कुछ कर दिया, चली गए थे सर, इस पे इतना कुछ कर लिया हमने, इतनी बार बार एक बात रिपीट कर दी, लेकिन इस पे फर्क नहीं पड़ता, लोग महंगी भी करते हैं चीजें और स्टॉक भी कर लेते हैं। अच्छा, लेकिन एक और बात है, मैंने कहा उसकी, इवन इन आवर हाउसेस व्हाट वी डू, हम भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी लोग यूजुअली करते हैं कि भाई अब रमजान आ गया है, जो खर्चा किसी का 10,000 रुपये 20 में चला जाता है, क्योंकि टेबल दस्तरखान बढ़ जाता है, सब कुछ सज जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कभी कभी मैं जैसे अपने घर से बोलता हूँ कि लेट्स ट्राई कि रोजे की जो रूह है उसको कायम रखें। बेसिकली तो देखें, इसके साथ रमजान में रोजे के फायदे हैं कि जी आपकी हेल्थ अच्छी हो जाती है, लेकिन बेसिकली इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है। ये वही वाला इसका ये जो ताल्लुक है ना वो अल्लाह ही के साथ, और ये देखिए कितनी बड़ी बात है कि आप वो चीजें अपने ऊपर हराम कर लेते हैं जो नॉर्मल हलाल है, क्योंकि अल्लाह का हुक्म आ गया। आप 1 मिनट पहले खजूर नहीं खाते, लेकिन आप हाथ खाते हुए डरते हैं नहीं डरते कि यार बात सही है, अच्छी कि यार हम 1 मिनट पहले खजूर नहीं खाते कि यार ये पड़ा है और हलाल है, ये मैं नहीं खा रहा क्योंकि मेरे अल्लाह का हुक्म है। तो मुझे अपने क्रिएटर से अपना ताल्लुक को उस तरह रखना है। मजहब को जब हम रिचुअलिस्टिक कम और इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ज्यादा लेके जाएंगे और उसकी सोल को, रूह को समझेंगे, सारे मामलात वैसे
आसान होंगे जैसे नबील भाई के 2008 से आसान हैं। बेसिकली मुझे लग रहा है हमें अपनी सोसाइटी की सब अपने अपने लेवल पे, जैसे मीडिया में हम आप हैं, बाकी लोग जहाँ जहाँ भी हैं, उनको अपनी कौम की तरबियत करना बड़ा जरूरी है। हमारे यहाँ ये हम बड़ा लैक करते हैं, हम समझते हैं कि हम हुकूक अल्लाह पूरे करके हुकूक बात से जान छुड़वा लेंगे। ये पॉसिबल नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। और हुकूक अल्लाह के साथ हुकूक इबाद भी अकॉर्डिंग टू अल्लाह करने पड़ते हैं, तभी जाके उसका बैलेंस बनता है। वेरी नाइस। Pakistan